Good morning, everyone. Now, today we are going to start a chapter in economics, money and credit. Money and credit. These two terms are very much familiar in our life. Every day we talk about money. Every day we work for money. Every day we want to save money. Every day we want to just collect more and more money. What is money actually? Have we really tried to get the meaning of money? And what we understand by the term money? Paisa, paisa, paisa. What is that money? When you went to market to purchase anything, you first check your pocket. Do you have so-called money in your pocket or not? But whether that is actually money or it is currency, you are also having the coins. That is also money. When you just sell anything, in lieu of that, you get something that is in terms of money, either maybe paper notes or coins. Similarly, when a casual labor works for you, at the end of the day, you give something to the person. What is this? This all are regarded as a money. Just in this particular chapter, we will try to get the meaning of money, and we will also try to see the reason of money. And one more thing that we will discuss, it is before money, how we are living. Today world we cannot live without money. At present we always think about money and we cannot imagine life without money. Let's begin. The concept of money. What is money? As we have just discussed, money can be explained. Any object that is generally accepted as a payment for goods. As you are going to get some vegetables, you have to pay something to the shopkeeper from whom you have taken the vegetable. And services, as a casual labor works for you, at the end of the day you have to pay something in terms of money. So it is as payment for goods and services and repayment for goods and services. Payment and repayment means you are buying any goods and you have to again pay something to person, that is called repayment. You have taken loan and you have to pay the loan again, means repayment of loan. So this is called repayment for goods and services and repayment of debts in a given country. Debt मतलब उधार अगर आपने लिया है तो उसके बदले भी आप जो देते हो, पेमेंट करते हो, that all is a part of money. Still, we are having some sorts of confusion. You may ask, sir, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें आप बता रहे हैं, रीपेमेंट ये वो. सिंपल. एक्चुअली मनी को समझना है तो मनी के फंक्शन को समझना है. In economics, one of the economists, Mr. Walker, has said, what is money? Money does, that is money. What money does, that gives the definition of money. You will see what money does, and that gives you a clear-cut concept regarding the money. One thing that is coming from this particular definition and this particular way of defining money and our practical experience is that money acts as a medium of exchange.
and you are going to get any goods, you are paying something. That is in the form of money. So medium of exchange of goods and services. So this is one of the important things we will discuss about it. Let's try to trace out how the word money originates. Origin of money. Money finds its origin in the need to facilitate exchange. What is this? Need to facilitate exchange. Before that money, whether we were not living, yes we were. But over here the word is there, need to facilitate exchange. What it means to facilitate exchange? Actually, before money, what kind of system we were having? We were having CC system. It is called CC exchange. CC exchange system means commodity exchange system, that is also called barter system. What is? It is called barter system. तो ये barter system क्या था? बार्टर को ही कहते हैं कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। इस सिस्टम में क्या है कि यू जस्ट एक्सचेंज वन गुड्स विद द अनदर। मीन्स इफ यू आर हैविंग some quantity of wheat and you need a pair of shoes, so you have to find out a person who is having a pair of shoes and looking for that wheat. Then you can exchange. You may take that pair of shoes and in lieu of that pair of shoes you may hand it over the wheat. This is called commodity exchange, that is called barter system. We will discuss this particular thing in detail, how barter system or how CC economy works before the concept of money arises. Before concept of money had been adopted and used in our practical life. So earlier we were discussing about the how money can be defined. So in that particular definition we come to know about facilitated exchange, and for tracing this we just started this new topic, CC commodity, means CC exchange of commodity. बार्टर सिस्टम वस्तु के बदले में वस्तु का एक्सचेंज, इस पे हम अलग से पढ़ेंगे। तो earlier there was CC exchange, but there was some problem that you have to find out the person those who are having the same thing that you require, and the person also needs the goods that you are having. Then only exchange can be takes place. This is called double coincidence of wants. Double coincidence of wants. दोनों तरफ उस सामान की आवश्यकता होगी तभी संभव है, नहीं तो you have to find out the other person. It takes time. But at modern time, there is no need to just ensure that you are having the same goods that the person requires, and you have to also ensure the person is having the same goods that you need. There is nothing. You have to one means of currency, one means of money, and you can get anything, and in lieu of that you have to give those money to the person, those who are selling those goods. Very much easy. So this is the reason why it is called medium of exchange. So barter system having its own limitations, and that limitations has been overcome by the introduction of money. Now let's see how the word money comes. Actually, the term money has been derived from the Latin word moneta. From where it comes? Moneta, which is another name of goddess Juno of Rome. Goddess Juno, वहाँ की देवी का नाम जुनो, रोम की देवी, उनके नाम पे। In Rome, the first mint मतलब टकसाल कहते हैं, यहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। Mint was established in the temple of goddess Juno. जूनो का दूसरा नाम मोनेटा था, ठीक है, जूनो या मोनेटा कहते थे, क्योंकि मिंटिंग सबसे पहले मिंटिंग वहीं पे शुरू हुई उसी टेम्पल में। तो उसी मिट्टी के बाद जो कॉइन बन करके आए उन्हीं के नाम पे इसका नाम मनी। और याद रखिएगा, मनी, एवरी कंट्री हैविंग देयर ओन मनी। तो अब हम लोग को पढ़ना है, इसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये सीसी एक्सचेंज की बात हम करते हैं, तो यानी मनी के पहले कमोडिटी एक्सचेंज की बात होती है, सीसी इकोनॉमी कहते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज।
यानी बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। व्हाट डज बार्टर सिस्टम मीन्स, व्हाट आर द लिमिटेशंस। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं लिमिटेशंस थी, दैट इट created the needs to have the another means of exchange, and we have got the solution in form of money. So next topic is barter system or CC commodity economy. See, in barter system or CC economy, C stands for commodity and CC economy means it's a kind of economy in which commodities are exchanged for goods. Commodities are exchanged for goods, यानी goods के बदले में goods की exchange होती है, उसे ही कहते हैं हम लोग barter system। अब इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप exchange तभी कर सकते हो when कि both the parties must have the goods that they require। यानी मान लो कि एक बंदा है ए, इसके पास राइस है और इसे चेयर की जरूरत है, और बी भी बंदा है जिसको राइस की जरूरत है, तो ये एक्सचेंज हो पाएगी। बट यदि ए इज नॉट विलिंग टू गेट चेयर, रादर ही इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मींस ही इज लुकिंग फॉर क्लॉथ, एंड बी इज हैविंग चेयर बट बी नीड्स राइस, एट द सेम टाइम सी इज देयर and having cloth, but C needs what? Cow. C needs cow and B is having cow. This is the situation. Now A needs chair but B needs cloth and C needs cow. How will the exchange will take place? बोले सर ऐसा करेंगे ना, ये इसको चेयर दे देगा, ये इससे क्लोथ ले लेगा, इस प्रकार से रोटेशन करके अंत में हो जाएगा। नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल। सो दिस इज द मेजर इश्यूज, मेजर प्रॉब्लम, मेजर ड्रॉबैक रिलेटेड टू द कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम और बार्टर सिस्टम। इसको कहते हैं डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स, यानी दोनों तरफ जो कमोडिटी एक बंदे को चाहिए, दूसरे बंदे के पास जो कमोडिटी हो उसके पास भी वो डिजायर हो कि वो पहले बंदे के पास जो गुड्स है उसको ले सके। अब ये चीजें सबसे बड़ी परेशानी की सबब है। यू हैव टू लुक, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। ए को जैसे मैंने कहा कि ए नीड्स चेयर बट बी नीड्स क्लोथ, ए नीड्स चेयर बट बी नीड्स क्लोथ। अब इसको क्लोथ चाहिए और ये जो सी है इसको काऊ चाहिए, जबकि सी को काऊ चाहिए लेकिन डी को राइस चाहिए, लेकिन ए को काऊ नहीं चाहिए, ए को चेयर चाहिए। फिर से समझ लीजिए, ए को चेयर चाहिए यानी डी के पास चेयर है, बी को लेकिन क्लोथ चाहिए, और बी को क्लोथ चाहिए तो सी बी को नहीं बेच सकता क्योंकि इसको चेयर नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? काऊ चाहिए। लेकिन जिसके पास काऊ है डी, वो बोलता है कि मुझे क्लोथ नहीं चाहिए, मुझे राइस चाहिए। अब कैसे एक्सचेंज? But at present, how we are doing things? Whether we are facing such problem? No. हमारे पास एक कॉमन मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी भी सामान, किसी भी सर्विस के बदले हम उसको उसके वैल्यू को पे करते हैं, उसके बदले वो हमारी मनी है। तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी सीसीसी इकोनॉमी में, यानी कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी में? वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसके बारे में और चीजों को देखते हैं। सपोज कीजिए, अब अगर मान के चलते हैं कि इसके पास राइस है, इसके पास कॉइन, दोनों के बीच एक्सचेंज होना, या चेयर की बात करें तो इसके पास राइस है, सपोज कीजिए कि इसके पास 50 केजी राइस है और इसके पास चेयर है। तय ये हुआ कि भाई करना क्या है, तो 40 केजी राइस के बदले आपको 2 चेयर मिलेगी, ठीक है। अब इसके पास चेयर है एक ही और इसके पास 50 केजी राइस है, तो कैसे एक्सचेंज होगा? कैसे होगा? या सपोज किसी पर 2 चेयर है और यहाँ 2 चेयर के बदले में इसको जो प्राइस चाहिए थी वो इसका 50 केजी मैंने कहा, यहाँ 2 चेयर है और यहाँ पे जो 2 चेयर की कीमत ये बंदा बता रहा है कि मुझे चाहिए आपके 60 केजी राइस, तो आप बोलिएगा सर 30 केजी दे देंगे, यहाँ आप कहते हैं। अब क्लोज पे आइए या काऊ पे आइए। अब काऊ है, इस काऊ के बदले में ये काऊ देने को तैयार है राइस के बदले में
लेकिन इसकी डिमांड है कि मुझे भाई अगर आपको गाय चाहिए तो मुझे 2 क्विंटल राइस चाहिए। अभी किसके पास तो केवल 50 केजी, तो कैसे होगा? और दे नीड इसे इसके परिवार को भोजन खिलाना है, परिवार भूखा मर रहा है, तो कैसे होगा? क्या इसने अपने जानवर को काटेगा? यानी स्टैंडर्ड यूनिट में आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी नहीं थी। जैसे आज क्या है कि आप कोई भी सामान को किसी भी यूनिट में लो, यू कैन गिव द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत थी, अब नहीं कर सकते। दूसरी बात, आज हम मनी को एक फ्यूचर पेमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सेविंग के रूप में उसको स्टोर करते हैं। लेकिन क्या उस समय आप क्या करोगे? आप अनाज को जमा करोगे एज अ सेविंग के रूप में। वो अनाज की कीमत मार्केट में बढ़ेगी घटेगी, और अनाज फेसिबल गुड्स है, वो समय के साथ सड़ने भी लगेगा, तो आप तो उसको स्टोर नहीं कर पाए। तो बार्टर सिस्टम में वैल्यू को स्टोर करने में भी बहुत बड़ी बात है। आपने गाय रखी, वो गाय समय के साथ उसकी कीमत घटने लगेगी, यानी उसकी जो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे गाय की एफिशिएंसी घटने लगेगी, तो वो आप मनी को स्टोर नहीं कर पाते, उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते, फ्यूचर पेमेंट के लिए आप नहीं कर पाते। ये चीजें बहुत बड़ी इसकी परेशानी थी। इसी ड्रॉबैक्स को, इसी लिमिटेशंस को मैंने इस पॉइंट में लिखा है, डिफिकल्टी ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वन। यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वन? हाउ मनी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? और दूसरा से ये पूछा सकता है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द barter system? What do you mean by barter system and what are the drawbacks of the barter system or limitations of the barter system? तो पहला लिखा difficulty of double coincidence of one means कि दो बंदे के बीच जो अगर आपको एक्सचेंज करना है तो दोनों बंदे के पास वो सामान होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता एक दूसरे को, अगर वो नहीं है ना, they have to look after this another person, those who need the goods that they are having, and the person is also having the same good that they require. तो ये तलाश जारी है। तो ये व्यापार में उस समय बहुत समय लगता है, इसलिए एक बार सुनते हुए व्यापार करने दूर देश को जाया करते हैं, लेकिन बाहर जाया करते थे, बाहर का मतलब अपने टेरिटरी से बाहर, और कई महीने रहकर व्यापार करके आते थे, बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर द पर्सन हु रिक्वायर्ड दोज थिंग्स। आज की तरह नहीं। तो इसको डिटेल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे हाउ मनी इट्स दिस प्रॉब्लम। तो मनी के विषय में आपने देखो तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किसी भी गुड्स और सर्विसेज के बदले में हम उसकी वैल्यू को हम पे करते हैं मनी के फॉर्म में। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू कैसे आप कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू करें, जो मैंने अभी कहा गाय के विषय में और ये राइस के विषय में, कैसे आप यूनिट लाते हैं, डिटरमाइन कैसे करें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके साथ आई वो है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ पेमेंट, यानी खास तौर से फ्यूचर पेमेंट की बात। आज मान लीजिए किसी वर्कर्स को आप हायर करते हैं, आप उसे बोलते हैं 5000 पर मंथ में आपको पेमेंट करो, एक वैल्यू आपके पास है 5000 पर मंथ, और उस समय आप क्या पेमेंट करेंगे, भाई अगर आप काम करेंगे तो आपको हम इतना अनाज देंगे। अब उस वैल्यू को देखिए, उस अनाज की वैल्यू मार्केट के अनुसार वो घटेगी बढ़ेगी और वो फेसिबल हो सकती है। मानो कि उस बंदे को उसकी जरूरत नहीं हो सकती और आपने वो अनाज दे दिया, तो वो क्या करेगा, फिर से वो मार्केट में जाएगा, अब उस बंदे को ढूंढेगा जिसको वो बेच सके और उसी से बेच सके, क्योंकि केवल अनाज ही आपकी आवश्यकता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द फूड यू ऑल्सो रिक्वायर क्लोथ्स, यू ऑल्सो रिक्वायर मेडिसिन्स, यू ऑल्सो रिक्वायर अ नंबर ऑफ अदर नीड्स टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट आज क्या है कि आपने मनी दे दी, नाउ द पर्सन इज फ्री टू गेट द थिंग्स एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट, तो आसानी से आप उसको एक्सचेंज कर देते हो। फिर है लैक ऑफ सिस्टम ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू और स्टोरेज ऑफ परचेजिंग। जो मैंने कहा कि आप अगर किसी सामान को खरीद के लाते हो, आप समझते हो कि उसकी आप फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे, उसकी उतनी वैल्यू मिलेगी, यू माइट बी एंड ऑफ आप स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू। अगर आपने आलू को रख लिया एज अ सेविंग के लिए कि आपकी बचत है, आपकी प्रॉफिट है, बट टाइम कम्स
कि आलू सड़ जाएंगे, तो आपकी सारी की सारी मनी वेस्ट हो गई। उसकी प्राइसेस हो सकती है घट जाए बढ़ जाए। एक समय में 10 किलो आलू के बदले में 1 मीटर क्लोथ मिल रहे थे, और बाद में ये भी हो सकता है कि 20 किलो आलू के बदले सेम क्लोथ 1 मीटर मिले। तो वैल्यू चेंज कर गई, आपकी सेविंग घट गई, पता ही नहीं चला। हाँ, ये भी सही है कि मनी के केस में भी डिवैल्यूएशंस होते हैं, बट इतनी सारी फ्रैक्शनलिटी उसमें नहीं आता है। देयर इज अ थिंग कि बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम, एंड आफ्टर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन देयर वाज अ नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा था कि जब हम बात की थी ओरिजिन की बात, तो वहाँ थी कि फैसिलिटेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वहाँ जो प्रॉब्लम आ रही थी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज की, उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक नई चीजों को डेवलप करने की बात आई, और वो है मनी। ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वास्तव में मनी के फंक्शन। सच पूछिए तो फंक्शन ऑफ मनी इटसेल्फ गिव्स यू द डेफिनेशन। यानी मनी, व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मनी वो है जो मनी करती है। तो क्या क्या करती है? The next topic we will discuss about the functions of money. Now students, see a very important thing. While defining money, so a very common statement is there. That is, money is what? Money does. मनी क्या है? वही तो मनी करती है। तो करती क्या है? फंक्शन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी सामान को आप मनी के बदले में आप एक्सचेंज कर सकते हो, सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे इफ यू आर गोइंग टू टेक अ केजी ऑफ वेजिटेबल, यू हैव टू पे मनी। There is no need to look after what the person desire to get after selling that particular vegetable. क्या उसे कपड़े चाहिए तो आप कपड़ा लेके जाओगे? नहीं, आप पेमेंट करो उसकी इन द फॉर्म ऑफ मनी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे मैंने कहा गाय और चावल के बीच में एक्सचेंज कैसे, उसके स्टैंडर्डाइजेशन कैसे, कैसे हम उसकी वैल्यू को जज कर पाए। तो मनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मनी रिजॉल्व द प्रॉब्लम कैसे करती है कि वो एक स्टैंडर्ड यूनिट को सेट करती है कि इतने के बदले आपको इतने सामान मिलेगी, उसकी प्राइसिंग, उसकी वैल्यू को स्टोर कर देती है। जैसे पहले के हुआ है मीडियम एक्सचेंज डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉन्ड्स को समाप्त किया गया। व्हेनेवर यू हैव बीन आस्क्ड हाउ मनी जस्ट इन द डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉन्ड्स, तो अगर वो डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉन्ड्स, तो आपको लिखना है कि हाउ मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद एग्जांपल। उसी प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है आपका मीन्स ऑफ पेमेंट। जैसे मैंने कहा कि आपको फ्यूचर पेमेंट करनी है, जैसे किसी वर्कर को 5000 रुपीज पर मंथ आपने प्रॉमिस किया, तो आप आसानी से आफ्टर अ मंथ दे दोगे। लेकिन अगर किसी को आपने कहा कि मैं आपको 50 किलो आलू दूंगा, और उस बंदे को एग्री कर गया, लेकिन उस समय में उस बंदे को उस आलू का कोई मतलब नहीं था, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कहाँ वो उस आलू को लेकर के बेचते निकले। सपोज करो कि उसने ये उम्मीद की थी कि आफ्टर 1 मंथ फंक्शनिंग वर्किंग के बाद वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर के आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस समय आलू की कीमत बिल्कुल नीचे हो गई, यानी आलू की फसल बहुत हो गई, डिमांड उसकी कम, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो आलू को खरीदने को तैयार नहीं। तो वो बंदा जो मारा जाएगा वो अपने बच्चों की नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है। So that means there is a great problem associated with the means of payment. Next is store of value. If you are like a farmer, generally farmers keeps a part of their grains using as a seed for the next agriculture. ये तो हम यूज करने के बाद सीड्स के ऊपर, लेकिन कई बार उस समय उनके पास वैल्यू को स्टोर करने की कोई साधन नहीं होती, तो क्या करेंगे वो अनाज के रूप में वैल्यू को स्टोर करें। मैंने अभी आलू का एग्जाम्पल, सपोज कोई किसान ने काफी आलू पैदा की, उसने आलू को खर्च के बाद अपनी बचा कर रखा कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करके वो अपने परिवार का लालन पालन करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली आलू की फसल इतनी हुई कि आलू की कीमत कोई खरीदने को तैयार नहीं। व्हाट विल द पर्सन विल फेस द प्रॉब्लम।
तो आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो, और समय उसको रखा आपने तो उसकी कॉस्टिंग भी, रखने की मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपके लगेगी, जो उस सामान की कीमत को, उसकी वैल्यू को और बढ़ा देंगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मच ऑफ मनी। और समय के साथ वो सामान सड़ेगी, बर्बाद भी होने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगी, आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाओगे। बट मनी इज हैविंग द कैपेसिटी टू स्टोर वैल्यू, उसकी कीमत को स्टोर करके रखना। वो इस प्रकार की वेरिएबल चीज नहीं है कि नष्ट हो जाएगी। आपने गोल्ड को खरीद कर रखा, हाँ गोल्ड के पैसे से अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होगी, वो वेरिएबल नहीं है, वो बर्बाद नहीं होगी, सड़ नहीं जाएगी, इट विल स्टिल विद यू। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द मनी। और ये मेजर फंक्शंस जो मनी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन मनी बिजनेस। पूछा भी जाता है, बच्चे बताते हैं इसको, व्हाट इज मनी? मनी इज अ थिंग दैट वर्क्स फॉर, व्हाट आर द फोर वर्ड्स? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये चार चीजें याद रखते हैं, आपको मेजर फंक्शन समझ में आता है, और यहाँ से भी ये 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए ये चीजें पूछी जाती हैं। और कई बार एक नंबर में व्हाट डू यू मीन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इससे अलग अलग चीजों पे पूछी जाने की संभावना बनी रहती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, वास्तव में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है। देखिए, अगर मनी कहते हैं तो आज के समय में मनी का आशय क्या है? मनी का आशय होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। मनी का आशय क्या हुआ? आज के फॉर्म में मनी मीन्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ये है आज के समय में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब करेंसी की बात करें तो करेंसी में क्या आएगी? तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आएंगे। पेपर नोट्स और कॉइन्स ये करेंसी में शामिल है। डिमांड डिपॉजिट्स इज अ टर्म एसोसिएटेड विद बैंक सिस्टम। जैसे हम लोग कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, जिसे कहते हैं चेक, जैसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, these all are the forms of modern means of money. So next topic we will discuss about these modern means of